Hour Special Edition. As the chorus for Uniform Civil Code rings louder, BJP Member of Parliament Kirodi Lal Meena introduced a private member's bill on the UCC in Rajya Sabha. The bill seeks the constitution of a committee to prepare and implement a uniform civil code in the country. However, the move was met with stiff opposition by parties who sought a vote on the proposed bill. The opposition parties, including the Congress, TMC, DMK, NCP, CPM, CPI, IUML, RJD, lodged strong protest against the move, with SP leader Ram Gopal Yadav even going on to say that if UCC was brought in, there would be unrest in the country. Now, while the opposition continues to protest against the proposed UCC, the Supreme Court has asked the centre to reform the Hindu Succession Act, to consider amending the Hindu Succession Act, which disqualifies a scheduled tribe woman from being considered on par with male counterparts in matters of her share in paternal property. Now, the irony, viewers, is here that the opposition has maintained pin-drop silence on the call for reform by the court. They should welcome it. They are welcoming it. But while this has been welcomed, why should call for UCC be linked to unrest? First, let's play out what transpired in the parliament. 3 notices. One is given by Sri Vaiko, Sri Abdul Wahab, and a joint notice opposing the introduction of the Uniform Civil Code in India Bill 2020. Dr. Kirodi Lal Meena. I also to introduce the bill. सर कंसिडरेशन के समय मैं इसमें विस्तृत सदन में जानकारी दूंगा, उस समय चर्चा की जाएगी. They are implementing one after another of the agenda of RSS and BJP. Therefore, Mr. Chairman, kindly see the bill is not introduced today. I request our honorable member to take back that one. When it is ripe, when the government feels, let them take. Before beginning such a registration, we should have wide consultation with different communities, with religions, with sections of the people. By imposing your forceful things, you are going to destroy the structure. Therefore, please do not destroy the structure of the country. If this is the kind of law that is to be brought in, then there will not be any peace in the country. I would appeal to the House that we let this be introduced. It's the members' right. And when the debate comes up on this subject, of course, everybody has a right to give their point of view. And at that time, it will be the property of the House to decide what they have to do. मैं आग्रह करूंगा किरोड़ी लाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए. ये देश हित में नहीं है, ये हमारे सरोकारों के हित में नहीं है, ये हमको एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं होगा. थैंक यू सर. Now, this is what happened when the bill was introduced. Now, listen to the Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav as he says or threatens that if this is introduced or allowed, there will be unrest. वैधानिक मैंने कहा, मैंने संविधान को कोट किया. ये विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया रहा है, ये अपने आप संविधान के खिलाफ है. संविधान ने माइनॉरिटीज के कल्चरल, एजुकेशनल सारे राइट्स को प्रिजर्व और फंडामेंटल राइट्स में डाला था कि अपने को अपने तरीके से मैरिजेस, रिलीजियस सबको मैनेज कर सकें. उसके खिलाफ ये आ रहा है. इट इज अगेंस्ट फंडामेंट, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट दे आर बुलडोजिंग इट. लेकिन ये तो देश में लोगों, अब जब एक बड़ी संख्या में लोग सशंकित हो जाएंगे, उन्हें किसी तरह का डर लगने लगेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सबको बर्बाद करने के लिए सब लिए आया जा रहा है. देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं. देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. Now let's play out what Ashwini Upadhyay, who is a petitioner in the UCC case, what he has said. After which I will play out Majid Memon's reaction, former member of parliament of the Nationalist Congress Party, Congress's ally, who's welcoming Supreme Court's intervention and call for reform and amendment of the Hindu Succession Act. समान नागरिक संहिता का धर्म, रिलीजन या मजहब से कोई लेना देना नहीं है. जो मंदिर जाते थे वो मंदिर जाते रहेंगे, जो चर्च जाते हैं वो चर्च जाते रहेंगे, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ते रहेंगे. इसका धार्मिक मान्यताओं से कोई संबंध नहीं.
समान नागरिक संहिता का सीधा सीधा संबंध महिला के अधिकारों से है, बहन बेटियों को बराबरी का दर्जा देने से है। समान नागरिक संहिता जब लागू होगी तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, यानी 4 शादी वाला नियम बंद होगा, बहुविवाह बंद होगा। समान नागरिक संहिता लागू होगी तो विवाह की जो न्यूनतम उम्र है अभी अलग अलग चल रही है, वो सबकी एक हो जाएगी। वो 20 साल होगी या 21 साल होगी, सबकी एक हो जाएगी। समान नागरिक संहिता लागू होगी तो तलाक लेने का तरीका सबका एक हो जाएगा। Brought in various states and are now also in the parliament. The Supreme Court has raised a very pertinent question that under Hindu succession existing laws, the backward women are deprived of their legitimate rights and they need to be extended help by bringing amendment to Hindu Succession Act. Now, as a matter of fact, in various personal laws, whether it is Muslim personal law or Hindu personal law or any other personal law, there may have been quite a few undesirable provisions which are not keeping pace with the need of the society today. And they all would be needing probably some correction here or there. And therefore, now Supreme Court believes that on one hand, if there is so much of noise about Uniform Civil Code, we must also not ignore the fact that, for example, Hindu Succession Act needs to have a relook, and probably there is a need to amend. There is a need to amend the Hindu Succession Act. Majid Memon says this. In the end, you heard it. Let's open this up. Sanju Verma, the national spokesperson of the BJP, stays on. Ashwini Upadhyay, advocate in the Supreme Court, needs no introduction really. Kamruzaman Chaudhary, leader of the Congress, and Manoj Taka, the spokesperson of the Samajwadi Party, completes the panel. Now, good evening to all of you. अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आने वाला था, लेकिन मेरा मन है कि मैं मनोज टाका जी से एक सवाल पहला पूछ लूं। मनोज टाका, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वुमेन है उनको भी अपना हक मिल सके, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय को मैं समझता हूं कि मुझे या आपको या पूरे देश को किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने का हक है नहीं, चूंकि वो देश की हमारे सर्वोच्च मान्यता वाली और सर्वोच्च भरोसे वाला संस्थान है। लेकिन आज जिस विषय पे हम आप जो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो इस देश में अभी मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। ये तो पहला सवाल पूछा आपको, मैं वहां तक लेके जाऊंगा। काका जी, एक एक करके चलते हैं। अब आप जवाब तो दीजिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको यूसीसी तक भी ले जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी टिप्पणी पर हम आप चाहे कोई व्यक्ति, यहां विधिवेत्ता भी बैठे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी निर्णय पर टिप्पणी कैसे करी जा सकती है? नहीं, क्यों? ये सामाजिक न्याय की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है रिफॉर्म करना चाहिए ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब महिलाएं हैं उनको हक मिले, तो उसको आप स्वागत करते हैं कि गलत है, क्या है? अरे मैं आपसे स्पष्ट और किस तरह से स्पष्ट करा जाए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अगर है तो हम आप कोई सभी बाध्य होते हैं। आप ये नहीं जानते, जब न्यायालय का कोई निर्णय होता है तो नागरिक सरकारें सभी उसको मानने के लिए बाध्य होती है। उसमें इनकार करने का कोई सवाल क्या है? अच्छा, आप, मुझे लगता है आप जवाब इसका नहीं देंगे। कमरुज़मान चौधरी से कोशिश करता हूं। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सजेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट? Yes. Well, you know, Pranesh, the entire debate of Uniform Civil Code has been made out and played in such a way that it seems to project. I am not from UCC, Mr. Chaudhary. I'll come to UCC. I will come to UCC, but my first question is in the Hindu Succession Act. The court says that we must amend it, has called for a reform. Your views? No, I'm coming to that.
I'm coming to that. I was telling that you cannot just isolate and debate on the UCC providing justice to a particular community's woman. You know the Hindu Succession Act, you know the Hindu, the Marriages Act 1955, then you have got the successive amendments that happened in 2015, the division of property under the Mitakshara law, school of thought, and you have got the Dayabaga school of thought. There are problems within the society that needs to be corrected. Now, how do you correct it? In Nagaland, for example, let me cite you one example. Over the last 10 to 15 years, if I am not wrong, not even a single local we'll get body into elections specific, have been Mr. held. Chaudhary. Let's begin by at least agreeing in principle about reforms. Because if you are welcoming a reform about the Hindu Succession Act, what is the problem with the UCC, Mr. Ashwini Upadhyay? ये अगर जो ये कह रहे हैं ये हिंदू सक्सेशन एक्ट को रिफॉर्म कर दीजिए, उसका स्वागत है, लेकिन यूसीसी अगर करेंगे तो देश में अनरेस्ट हो जाएगा। अश्विनी उपाध्याय जी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 7 बार कहा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, और भारत की अलग अलग हाई कोर्ट ने 12 बार कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, 12 हाई कोर्ट कह चुका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, और 7 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। एक बार 1995 में सरला मुदगल केस में तो इतना तक कह दिया था आप इस पे एफिडेविट फाइल करो। आप कब तक लाओगे, टाइमलाइन बताओ। ये 1995 की बात बता रहा हूं, लेकिन वो उस समय यूसीसी तो नहीं आया। 1995 में वक्फ एक्ट आ गया, जिसको मैंने अभी चैलेंज किया। हमारा ये कहना है कि यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिबेट का विषय नहीं है। जो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो डिबेट का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लंबी डिबेट हो चुकी 1947 में, 48 में। 20 नवंबर 1948 को यूसीसी पे डिबेट शुरू हुई, 3 दिन लगातार डिबेट हुई। 23 नवंबर को वोटिंग हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कंक्लूड किया, कंक्लूड करके कहा कि इंडिया में जैसे एक इंडियन पिनल कोड चल रहा है, ऐसे एक इंडियन सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। इसलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये डिबेट करना कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो फ्रेमर्स हैं, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या जो लोग संविधान सभा में थे, नेहरू जी, उनकी इंसल्ट करना है। अब तो एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट प्लीज, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। प्रणेश जी, हमारा यह कहना है कॉमन सिविल कोड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉमन सिविल कोड से पहली बात तो मेल का कोई लेना देना नहीं, पुरुषों का कोई लेना देना नहीं। कॉमन सिविल कोड से हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं। कॉमन सिविल कोड से ट्राइबल्स का या बाकी का कोई लेना देना नहीं। कॉमन सिविल कोड में क्या होगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, इसमें कौन सा आसमान टूटेगा। तलाक का तरीका एक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, होना चाहिए सबका एक। तलाक का ग्राउंड एक हो जाएगा, इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम आ गया। गुजारा भत्ता का राइट सबको मिल जाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया। गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, विरासत का अधिकार सबको मिलेगा। नहीं, इससे ये जो आप चीजें कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, इससे अनरेस्ट हो जाएगा, समानता से अनरेस्ट हो जाएगा, और जो सेलेक्टिविज्म और एक तरफ से बायस है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कमरू जमान, संजू वर्मा, आई एम कमिंग टू यू, बट आई थिंक ही हैज अ क्वेश्चन, मिस्टर चौधरी हैज अ क्वेश्चन फॉर अश्विनी जी। जो राइट हिंदू बेटियों को है, अगर हिंदू मेरा लर्नर लॉयर उपाध्याय साहब से एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं हिंदू मुस्लिम का डिबेट में नहीं आ रहा हूं। मेरा अपील आपसे है, मैं हिंदू मुस्लिम डिबेट में नहीं आ रहा हूं। आप समानता लाना चाह रहे हो हिंदुस्तान में, वेरी गुड। आप नागा कस्टमरी लॉज को कैसा लाओगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, मैट्रियार्कल सिस्टम जो मेघालय में उसको कैसा लाओगे सिविल कोड में, आप गोवा का जो कस्टमरी लॉज है उसको कैसा लाओगे, मिताक्षरा दयाबागा लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसको किस तरह से लाओगे। वन लॉ डज नॉट फिट इंडिया सर, इफ यू लाइक इट और नॉट, is a multicultural, let him respond. I'm coming to you, Sanju Verma, after this. Pluralistic society, and let him respond now, sir. हो गया. And we are proud of our pluralistic society. Don't try to vilify one particular. अरे भैया सुन तो लीजिए, India to the dogs. अब जवाब तो सुनिए. You asked him a question, you want to answer it yourself. अगर वन नेशन वन पिनल कोड हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स कोड हो सकता है,
वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो सकता है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड हो सकता है, तो वन नेशन वन सिविल कोड क्यों नहीं हो सकता? कौन सा इसमें रॉकेट साइंस करना है? एक किताब बनानी है, जैसे इंडियन पिनल कोड है, इंडियन सिविल कोड बनाना है, उसमें 10 चैप्टर बनाना है। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 मेंटेनेंस, चैप्टर 4 चैप्टर 1 10 चैप्टर करने। इंडियन सिविल कोड ICC संजू वर्मा, the opposition says if you bring in the ICC there will be unrest in the country. Sanju Verma speaking now. You know, Pranesh, now I have been absolutely quiet. I wish to not be heckled. You know, I think, Pranesh, thank you for hosting this discussion. I think Ashwini Upadhyay has touched upon so many points and explained it so wonderfully well and so exhaustively that nothing much needs to be added. But I will just add to a couple of things that Ashwini Upadhyay said. You know, very rightly, if we have a common criminal code, why not a common civil code? That apart, Pranesh, be it the Champaran Mills judgment of 1980-1980, be it the Shabano judgment of 1985, be it the Sarla Mudgal versus Union of India judgment of 1995, be it the Molly Joseph versus George Sebastian case of 1996, or for that matter, be it the Meena case as recently as 2021, when husband and wife, both belonging to the Meena tribe, filed a case against each other, and Pratibha Singh, the Chief Justice of Delhi High Court, categorically said that personal laws cannot supersede the Constitution, and the time has come to implement a uniform civil code, because plurality and diversity do not mean that you will not have uniformity in laws relating to marriage, divorce, succession and inheritance. This is Pratibha Singh as recently as July 2021. And you know, Congress people always say हम B.R. Ambedkar की बातों में विश्वास करते हैं. B.R. Ambedkar was all in favor of the Uniform Civil Code. And what does Article 37 of the Constitution say? Article 37 says that it is the duty of the Indian state to ensure that directive principles of state policy under Article 44 of the Constitution are made into a law. So do the Congress people not believe in Article 37? Do they not believe in B.R. Ambedkar? Do they not believe in Article 44? So please don't sit here and give a bhashan. Even the Hindus, their civil laws have changed over decades. We used to believe in dowry. We don't believe in dowry today. It is punishable. We used to believe in child marriage. We no longer believe in child marriage. We used to believe in sati. We no longer believe in sati. So why should Muslims continue to believe in polygamy? Why should Muslims continue to believe in nikah halala? Into a Hindu-Muslim debate. You are staying It's not about in a India, which is a Hindu-Muslim, it's about democracy. You are preserving the staying in a plurality of Sharia. No, but you made it Hindu-Muslim. But no, 1 minute. Kamru Zaman Chaudhary, the opposition has made it Hindu-Muslim. Ashwini उपाध्याय जी ने तो कहा ये हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात है? ना ऑपोजिशन ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाया. Now if you heard the comments made by no 1 minute Mr. काका जी आ रहा हूँ मैं आपके पास. मनोज काका मैं आ रहा हूँ आपके पास. आपसे मैंने पूछा तो आपने बोला कि एक ही जवाब दिया आपने कि नहीं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. ये आप ये बताइए अनरेस्ट कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप यूसीसी लाएंगे तो अनरेस्ट हो जाएगा? कौन करेगा अनरेस्ट? पाकिस्तान में होगा अनरेस्ट? कहाँ होगा अनरेस्ट? प्रणेश इस देश में आप भी जान रहे हैं तमाम तरह के धार्मिक लोग रहते हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं. जो भी लोग जिनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, अगर धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान के प्रस्तावना में ही प्रणेश भाई करी गई है, और धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है वो यही है कि सबको अपने हिसाब से अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का, अब ये बोल के अब आप फंस गए. देखिए एक रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात आपने प्रणेश सुनिए. अच्छा बोल लीजिए अश्विनी जी आप ही बता दीजिए. समान कम से कम आप समता का भाव तो रखिए. नहीं बिल्कुल. अच्छा चलिए बोलिए. मैंने तो आपको समता के भाव से ही पूछा था, इसीलिए मैं पहले आपके पास आया था. आपने जवाब ही नहीं दिया. चलिए बोलिए आप कंप्लीट कीजिए. नहीं प्रणेश भाई मैं स्वागत करता हूं इस बात का. देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये है
इनका मूल मुद्दा यह है कि ये इस देश के 140 करोड़ के लोगों को महंगाई से, बेकारी से, भूखमरी से मारते रहें, अपना नया नया एजेंडा चलाते रहें कि प्रणेश जैसे लोग कभी इस देश में भूखमरी बढ़ी है इस पर न बात कर पाए, बेकारी पर बात न कर पाए। ये आर्ग्यूमेंट मनोज टाका जी, देखिए ये आर्ग्यूमेंट आप भी जानते हैं कि ये टेनेबल नहीं है। अश्विनी जी आपका जवाब दे रहे हैं, फिर मैं खत्म करता हूँ। अश्विनी जी कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे नेशनल टेलीविजन प्रणेश, कह रहा हूं अश्विनी, देखिए प्रणेश, सेकुलरिज्म नहीं अश्विनी जी को बोलने दीजिए। एक मिनट सुन तो लीजिए। हाँ, सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये कभी एक साथ नहीं चलते। दुनिया में एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां जो सेकुलर है वहां पर्सनल लॉ चलता हो, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। अगर वो पर्सनल लॉ है तो सेकुलर नहीं है, और वो सेकुलर है तो फिर पर्सनल लॉ नहीं, फिर वहां पे कॉमन कोड है, कॉमन पिनल कोड है, कॉमन सिविल कोड है, कॉमन टैक्स कोड है। ये बेसिक फीचर होता है अपने सेकुलरिज्म का। और जहां तक ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, एक बार जरा आप एक सुनिए प्लीज। अरे सुन तो लो भैया, सुन तो लो। एक बार 1962 का लोहिया जी का भाषण सुनिए। एक बार लोहिया जी का भाषण सुनिए आप। लोहिया जी ने बोला था समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता। अब ये लोहिया वाली समाजवादी पार्टी कहां बची है? सकता है ये लोहिया जी के पास। अब लोहिया का सिर्फ फोटो लगा के अब ये बैठे हैं मनोज काका जी। लोहिया वाली समाजवादी पार्टी है क्या? क्या रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट आप पढ़ के नहीं, लेकिन वो आपको फैक्ट पे सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं अश्विनी जी बोल रहे हैं लोहिया पे, उस पे आपके पास जवाब है? अच्छा बताओ, लोहिया ने समान शिक्षा समान नागरिक संहिता की लोहिया के समाजवाद को खड़ा किया है, उसको दौड़ाया है, तो समाजवादी पार्टी है। अरे तो खड़ा किया तो है, लेकिन आप लोगों ने उसको खड़ा रहने का दिया, आप लोगों ने गिरा दिया उसको। अब चलिए, अब खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। संजू वर्मा, अश्विनी उपाध्याय, but this is an important story that we will continue to highlight because we want this reform bias to end. Can reforms be selective, viewers? That's the question. On that note, I'm ending this. You can share your thoughts with Times Now on our Twitter handle, Facebook page and Instagram. I thank all of you, Mr. Chaudhary, Manoj Taka, Ashwini Upadhyay, Sanju Verma for joining us. The News Hour Special Edition.